नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 7 बजे तक और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज सिलचर में दिन दहाड़े एक स्कूल शिक्षिका को अपहरण करने की कोशिश को नाकाम किए स्थानीय लोग। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज श्रीकोना इलाके में काटीगोड़ा से आ रही एक स्कूल शिक्षिका को अपहरण करने की कोशिश की कुछ युवक। शिक्षिका अपने पिता के साथ सिलचर शहर की तरफ आ रही थी, तभी काटीगोड़ा से बोलेरो में बैठे हुए कुछ युवक उनकी पीछा कर रहे थे। श्रीकोना के पास अचानक आकर बोलेरो गाड़ी शिक्षिका की गाड़ी के सामने खड़े कर शिक्षिका के गाड़ी के जो चालक था उससे बदतमीजी करने लग गए तथा उसे मारपीट भी करने लग गए और कुछ लोग शिक्षिका को अपहरण करने की कोशिश करने लगे। तभी ये सारे वाकया स्थानीय लोगों की नजर में पड़ा। लोग दौड़कर आए और शिक्षिका की अपहरण करने की जो कोशिश था उसको नाकाम किए। हालांकि स्थानीयों के हाथ मात्र एक ही युवक लगा और बाकी सभी युवक मौके से फरार हो गए। पकड़ा गया फरीजुद्दीन नामक युवक का कहना है कि स्थानीय एक व्यवसायी उन्हें यह काम के लिए 5 लाख रुपए देने की पेशकश किया था। इस दौरान तारापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक की हिरासत में लेते हुए बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं विराज कुमार का यह रिपोर्ट। স্যার অনেকদিন থেকে হ্যারাস করেন আমারে, মানে খুন করব, কিডন্যাপ করব, এই ধরনের অনেক হ্যারাসমেন্টের আমার প্যারেন্টস রে। আমি হঠাৎ এখন কি হইছে? আমরা যাইয়ার, আমি স্কুলে যাইয়ার, ওরা একটা বোলেরো গাড়ি পিছন করেন। আমি প্রায় দুয়া থেকে সাতচাপড়া থেকে ফলো করি। এখানে যখন শিকুনা আইছে, শিকুনা গাড়িটা কি করছে, এখানে দুইটা রাস্তা আছে ফ্লাইওভারের সাইডে, একটা সাইডে গাড়িটা স্টপ করছে, আমার গাড়িটা ক্রস করছে, তখন আমি পিছন দিকে ফিরে চাইছি। বোলেরো গাড়িটা আমরা গাড়ি পিছন করে এখানে আইয়া হঠাৎ গাড়িটার সামনে টার্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আমরা কয় যে আপনারা লোক আছেন সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া আইছেন, আইয়া কইয়া আমার হাতে ধরছে। তারা চাই পাঁচজন আমার হাতে ধরছে, কয় তোমরা অ্যাক্সিডেন্ট করে আইছো। ইভেন আমার পরে ট্র্যাক করিয়া গাড়ি থেকে নামাইছে, তার সঙ্গে আমার ড্রাইভারকে মারিয়া চাবিটা নিয়ে গেছে গাড়ি। আমার বাইক আমি কাকারি শহর লইয়া আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা দেন। জি, আমার নাম তামান্না নাসরিন বড়ভুইয়া, আমার বাড়ি রাজাটিলা। রাজাটিলা না? আপনার বাবা, আপনার লগে বাবা আছে? বাবার নাম? আমার বাবার নাম আব্দুল কালাম আজাদ বড়ভুইয়া, তাই না আগে এক্স টিচার আসলো। এক্স টিচার না? হ্যাঁ, আমি টিচার, আমি যাইছি আমার স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় এই ধরনের হ্যারাসমেন্ট। এরপরে হঠাৎ আক্রমণ করার পরে আপনি বাসে গিয়া আমার আশ্রয় নিয়েছেন। আমি বাসে দৌড়াইয়া আপনারে দেখি, আমি বলি যে আমারে বাঁচাও। এবং আমি বাবা, যাই হোক, আমি গর্বিত যে একজন যে খেদাইয়া যে আমি দরিয়া আনতে পারছি, এটাই আমি গর্বিত। আমি প্রশান্ত সিনহা, ট্রাফিক ব্রাঞ্চ, শিলচর। গতিকে এটাই আমি অনেক বেশি গর্বিত যে আমার যে সাইডের মানুষ যারা তারা সবাই আমারে হেল্প করছে, আমি খুব বেশি খুশি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনার নামটা? আপনার গার্জিয়ান? আমি গার্জিয়ান, বাবা মেয়ের বাবা। আপনার পরিচয়টা দেন। আমার নাম আব্দুল কালাম আজাদ বড়ভুইয়া। আচ্ছা, এক সার্ভিসটা রাজাটিলা স্কুল। আচ্ছা, ধন্যবাদ, রাখি। জোরে কো ঘর কই? হ্যাঁ, কি করছো তুমি? আমি একজন বেটি বাগানে গেছি। হ্যাঁ, বেটি বাগানে গেছি। কইতে গিয়া? ওই তো কল্যাণী মিশ্রিত। হ্যাঁ, কল্যাণী মিশ্রিত। কিটার লাগিয়া? ওই একজন আনিয়ে দেওয়া লাগে। কারে দিদায়? হাসানকে। কোন জায়গার মানুষটা? গুমলা জগালকে। কিটা করে? ব্যবসা করতাম পারি না কিতা করে। কত টাকা দিব তোমার? দিব আমরা 5 লাখ পিস। আর মেয়ে লোকটাকে চিনো নি? মেয়ে लोग ना मेरे लोग चिनी ना। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की टीकाकरण लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एम्स पहुंचकर कोविड-19 को भारत से मुक्त करने के उद्देश्य से वह खुद भी टीकाकरण लिए। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टीकाकरण ले रहे थे तो उन्होंने अपने गले पर असमिया जाति के सुप्रसिद्ध गामोछा डाले हुए थे। उनकी ये परिधान देखकर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए असम राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स में जाकर कोविड वैक्सीन लिया। आत्मनिर्भरशील भारत का तहत बना कोवैक्सीन लेकर मोदी जी ने यह सिद्ध किया कि वो आत्मनिर्भरशील भारत के लिए कितने समर्पित है। उससे भी बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वैक्सीन लेते समय मोदी जी ने अपना गले में
असम का गामूसा को ही पहन के रखा था। इससे ये सिद्ध होता है कि मोदी जी का मन में अहोम और असमिया के लिए कितना प्यार है। मोदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिलचर शहर के फुटपाथ में जो अस्थायी रूप से व्यवसाय करते हैं, ऐसे व्यवसायियों पर सिलचर ट्रैफिक पुलिस की गाज गिरी। दरअसल कछार ट्रैफिक पुलिस आज सिलचर शहर में जितने भी फुटपाथ है, सभी फुटपाथ को खाली कराने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया। इस दौरान जितने भी व्यवसायी फुटपाथ पर बैठकर अपनी व्यवसाय चलाते हैं, ट्रैफिकों द्वारा उनको वहां से खदेड़ा गया। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि सिलचर शहर में बढ़ रही ट्रैफिक को खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जो व्यवसायी अपने अपने दुकान लेकर फुटपाथ से खदेड़े जा रहे हैं, उनका मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के अभियान चलाने से उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। भाजपा सरकार के राज में भी अब तक कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा क्षेत्र अंडर डेवलप्ड है। ऐसा हम नहीं बल्कि भाजपा का ही नेता गौतम राय का यह मानना है। गौतम राय का कहना है कि उनका नजर काटीगोड़ा में इसलिए है कि वह काटीगोड़ा को अंडर डेवलप्ड से उभारना चाहते हैं। उनका कहना है कि दल अगर उन्हें इस बार प्रत्याशी घोषित करती है, वो काटीगोड़ा के साथ साथ समूचे बराक घाटी के लिए कार्य करेंगे। दरअसल सिलचर में न्यू स्पोर्ट्स इंडिया नामक एक खेल सामग्री की दुकान की उद्घाटन करने पहुंचे थे गौतम राय। उन्होंने ये बातें संवाद कर्मियों के समक्ष रखे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। अपने 3 मांगों के साथ 2 दिन के लिए हड़ताल पर गए हुए हैं समूचे असम के प्रशिक्षित गृहरक्षी बाहिनी। आज कछार जिले के होमगार्ड कार्यालय के समक्ष हड़ताल पर बैठे होमगार्ड कर्मियों ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे असम से करीबन 27,000 होमगार्ड वोट बैकआउट करने पर मजबूर होंगे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। होमगार्ड होमगार्ड एसोसिएशনের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে আমি কিছু আজকের কর্মবিরতি উপলক্ষে কিছু বলার জন্য আজকে বিগত 2007 থেকে আমাদের সংস্থা গঠন হয়েছে এবং সরকারের কাছে আমরা দফায় দফায় দাবি তুলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দাবি আমাদের পূরণ হয় নাই। তাই জন্য আমরা আজকে কর্মবিরতি করেছি এবং আমরা এখনও পর্যন্ত মানবতার ভিতরে রয়েছি। কিন্তু আর যদি আমাদের এই দাবিগুলো পূরণ না হয় তাহলে আমরা মানবতা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হব এবং আমাদের দাবিমূলক সিট 3টা দাবি আমাদের চাকরিটা নিয়মিতকরণ করার জন্য এবং আমাদের এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যে অর্ডার সেটা মানার জন্য, আর আমাদের আজকে কয়েকদিন থেকে এই অনলাইন সিস্টেম করেছে সেটা বন্ধ করার জন্য। এই 3টা দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন নামবো। এটা নিয়ে আমাদের স্টেট কমিটির সেকশন আছে এবং এটা নিয়ে আমার চিন্তাধারাও আছে। এই বলি আমি আমার কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট। আজকে আমরা সরকারের কাছে বারবার বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব নিয়ে খাড়া হয়। সরকার আমাদেরকে নানান ধরনের প্রলোভন দিয়ে বাহতাবাজি করে আমাদেরকে শুধু কাজ করে আদায় করে নিচ্ছে। আমাদেরকে শুধু সরকারের কাজ চালানোর জন্য আমাদেরকে কি রাখা হয়েছে? আমাদেরকে বউ বাচ্চা নাই, আমাদেরকে ফ্যামিলি নাই,
আমরা সরকারের কাছে এত সব বারবার দাবি করা সত্ত্বেও আমাদের সরকার নানান বাউতাবাজি করেছে। আমাদের ঘরে ছোটো ছোটো বাচ্চা, আমাদের পড়াশোনা করানোর কোনো ব্যবস্থা দিতে পারছি না, আমাদের ফ্যামিলি মেনটেন করতে পারছি না। এই সামান্য 2 টাকা বেতন দিয়ে, এটা দিয়ে কি একটা ফ্যামিলি গঠন করা যায়? 9,000 টাকা বেতন দিয়ে পা দিয়ে আমাদের 300 টাকা করে দেওয়া হয়। এই বেতনে কিচ্ছু হচ্ছে না আমাদের। যদি সরকার আপনাদের দাবি না মানেতে, আপনার নেক্সট পদক্ষেপ কী? নেক্সট পদক্ষেপ আমরা একটা বৃহত্তরভাবে নিয়েছি যে কার্যসূচি, এটা আমরা ভাববো আগামী ইলেকশন বয়কট করবো বলে। আমাদের 27,000 গৃহহী জোয়ান করবো, সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলি করবে, আত্মীয় স্বজনরাই করবে। আমরা এটা মনে মনে একটা ধারণা নিয়েছি। सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं सिविल अस्पताल में चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाना, पेपर मिल को पुनः चालू करना, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में जो खाली स्थान है उस स्थान पर तुरंत नियुक्ति देना, बढ़ती हुई महंगाई को रोकना, ऐसे ही कुछ मांगों के साथ आज SUCI यानी कम्युनिस्ट दल के कार्यकर्ताओं ने सिलचर में विरोध प्रदर्शन किए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এই প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, প্রতিটা জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। পেট্রোপণ্য থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস 1000 টাকা ছুঁয়ে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মারাত্মক হচ্ছে। তেলের লিটার প্রতি প্রায় 50 টাকা 60 টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। এই যে মূল্যবৃদ্ধি, এটা কার স্বার্থে বন্ধুগণ? আমরা SUCI কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আন্দোলন কার্যসূচি হাতে নিয়েছি। এই যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, তারপরে দীর্ঘদিন থেকে আপনারা জানেন আমরা আন্দোলন করে আসছি শিলচর মেডিকেল কলেজ নিয়ে। শিলচর মেডিকেল কলেজে নিউরো, নেফ্রো, ইউরো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো নেই। কিন্তু সমস্ত সরকার, আগের সরকার এবং বর্তমান সরকার, সমস্ত সরকার প্রতিশ্রুতি মানুষকে বারে বারে দিয়েছে, আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করেছে। আজ পর্যন্ত 50 বছর পূর্ণ হয়েছে শিলচর মেডিকেল কলেজের। যে 50 বছর আগে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তখন জনসংখ্যা যা ছিল তার 5 গুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মেডিকেল কলেজের অবস্থা শোচনীয় থেকে আরও শোচনীয় হয়েছে। এই যে আঘাত, সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, তার আদায় করা সম্ভব নয় আন্দোলন ছাড়া। তাই বন্ধুগণ, এই যে সামনে নির্বাচন আসছে, নির্বাচনের আগে এরা প্রতিশ্রুতি আরও ভালো করে দেবে, বুঝিয়ে বলবে সব হয়ে যাবে, আপনারা দেখবেন সোনার সংসার হয়ে যাবে, তাদের বক্তব্যের মধ্যে এইসব চলে আসবে। তো আমরা জানি এরা পুঁজিপতিদের সরকার, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে এরা সমস্ত নিয়ম করছে। তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় এরা নিমগ্ন। দেশের সাধারণ মানুষের কথা এরা ভাবছে না। তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আমরা নির্বাচনের আগেও বহু আন্দোলন করেছি, আপনারা জানেন। আমরা নির্বাচনের পরে আবার দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন গড়ে তুলব। মেডিকেল কলেজ মূল্যবৃদ্ধি, এই শিলচর শহরের যানজট, নালা নর্দমার সমস্ত রাস্তাঘাটের সমস্যা, এইগুলো নিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। এই আন্দোলনে আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। ইনকলাব। चल रही मीडिया सुपर प्रतियोगिता में चैंपियन बना ईशान बांग्ला। ईशान बांग्ला सामूहिक प्रसंग को 51 रन से मात देकर यह खिताब अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के निर्णय किए सामूहिक प्रसंग। पहले बल्ले के साथ मैदान में उतरी ईशान बांग्ला के दल ने 101 रन जड़े। जवाब में जब सामूहिक प्रसंग ने मैदान में उतरी तो उनके बल्लेबाज मात्र 51 रन में ही सिमट गए और 51 रन से मात देकर ईशान बांग्ला ये खिताब अपने नाम किए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। তো এই খেলাটা যদি সবসময় আমরা চালিয়ে যেতে পারি। এবার মিডিয়ারা ইনডোর গেমও করেছিল, আমি সেই প্রোগ্রামটাতেও ছিলাম, ওদের পুরস্কার বিতরণী প্রোগ্রামে আমি ছিলাম, ওকে ডেকেছিল। কারণ এই যে খেলাগুলো হচ্ছে, সেটা ইনডোরই হোক আউটডোরই হোক, সেই খেলাগুলোতে মেন্টাল এক্সারসাইজ ভীষণ হয়। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তো হয়ই, কিন্তু মেন্টাল এক্সারসাইজটা এমনভাবে হয়, আমাদের আজকালকার যে যুগটা পড়েছে, প্রচণ্ডভাবে অল্প বয়সে ছেলে মেয়ে, আমরা আমাদের যে পরের জেনারেশনরা ওই একটা ডিপ্রেশনে ভোগে। কারণ কম্পিটিশনের যুগ তো, কাজে সব ছেলেমেয়েরা ডিপ্রেশনে ঢুকে, যখন ওদের নিডসগুলো পুরো হয় না বা ওরা যেটা ওদের ডিমান্ডসগুলো পুরো হয় না, তখন ডিপ্রেশনে চলে যায়। যার জন্য
খেলাধুলোটা মিডিয়া যে কাজগুলো করছে সেটা যদি আমাদের সামাজিক স্তরেও একটু 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 হয়, একটু হয় না যে একদম তা না, একটু একটু হয়, সামাজিক স্তরে যদি আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায় জিনিসটা, তাহলে मेंटल एक्सरसाइज। सोनाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से यह अटकलें चल रहा था कि कछार बीटीपी के डेप्यूटी एडवाइजर आशीष हल्दार चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं। लोगों में यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सोनाई विधानसभा क्षेत्र से आशीष हल्दार चुनाव मैदान में दिखेंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आशीष हल्दार असम सरकार के संयुक्त सचिव के पास अपने डेप्यूटी एडवाइजर पद से इस्तीफा के लिए एक पत्र लिखे हैं और उनके पत्रों में यह साफ लिखा गया है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में सोनाई विधानसभा क्षेत्र से प्रतिद्वंद करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, जिसके कारण वह कछार गांव रखी वाहिनी की डेप्यूटी एडवाइजर पद से खुद को मुक्त करने की सिफारिश कर रहे हैं। इस बात से यह साफ प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सोनाई विधानसभा क्षेत्र से आशीष हल्दार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। रविवार को दक्षिण असम के ऐतिहासिक तीर्थस्थल श्री श्री ब्रह्म बाबा मंदिर परिसर में अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के असम शाखा समिति के मार्गदर्शक तथा असम विश्वविद्यालय की सामाजिक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल जी मिश्र, अखिल असम ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जवाहरलाल पांडे, महासचिव सुब्रत शर्मा एवं समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों की अथक प्रयास से आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों की आर्थिक, सामाजिक एवं कर्मकांड के विषय में उपस्थित विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने पहुंचे थे अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ब्राह्मण शिरोमणि पंडित कमलेश रामायज्ञ पांडे, संरक्षक पंडित अनिल प्रताप त्रिपाठी। इस दौरान ब्राह्मणों के वेद एवं कर्मकांड पर वाराणसी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विभाग के वेदाचार्य पंडित पतंजलि मिश्र, उन्होंने पंडितों के उत्थान के लिए संदेश दिए एवं कार्यशाला के दौरान अपनी ज्ञान की गंगा बहा दी। कोई भी संगठन हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, संगठन संगे शक्ति कलयुगे। हमारी जो शक्ति है वो आप सभी लोग हैं और आप सभी लोग हमारी शक्ति तभी बनेंगे जब अच्छे आचरण के साथ चलेंगे। हम दूसरे से तो उम्मीद करते हैं कि वह अनुशासन का पालन करे, लेकिन हम खुद जो है अपने पे नहीं करना चाहते। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी ने कहा था, खुद पे शासन फिर अनुशासन। आप आत्मानुशासन की बात सोचिए, जब तक कि वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और जरूरत इस बात की है कि हम कब तक भिक्षु बने रहेंगे, कब तक हम याचक रहेंगे। हमारी इतनी बड़ी शक्ति है, अगर हम उसको जागृत कर लें। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े बड़े राजे राजवाड़े आकर के नतमस्तक हुआ। जरूरत इस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि हम केवल प्रवचन और भाषणों से काम नहीं चलेगा। हम कुछ कार्य को लेकर के आए, छोटी छोटी चीजों को लेकर के। मैं निवेदन करूंगा, महामंत्री जी कुछ प्रस्ताव हैं मंच में कहेंगे, तो केवल मेरा एक ही चीज कहना है कि यह संगठन न तो पंडित कमलेश रामयज्ञ पांडे जी का है, न तो पंडित अनिल प्रताप त्रिपाठी जी का है। मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। यह संगठन आप सभी लोग, इन्होंने तो एक केवल रोशनी फैलाने का काम किया। अब उस रोशनी को आप कहां तक लेकर के जाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, आप कितना सफल बनाते हैं। मेरा एक सपना है, मैं ये नहीं जानता हूं कितना होगा सच, कि एक यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय बने जहां से योग्य जो है विद्वान निकले और वह अपनी रोशनी फैलाएं। उस पर काम चल रहा है। हमारे
जो है इस असम शाखा के अध्यक्ष जी उस पर रोशनी डालेंगे, क्या है, क्या स्थिति है। और साथ ही साथ यहाँ के मंदिरों में अगर कम से कम आधे घंटे वेद पाठ हो। पुंडरीकाक्षं स मनुष्य बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर पवित्र हो जाता है। बाह्य पवित्री होती है स्नान करने से, बाह्य पवित्री होती है ब्रश करने से, दत्वन करने से। तो ये स्नान आदि करने से बाह्य पवित्री हो गई, लेकिन आभ्यंतर पवित्री कैसे होगी? तो आभ्यंतर पवित्री के लिए सर्वावस्था से मुक्त होना पड़ेगा, और सर्वावस्था से मुक्त होने के लिए सत्य का आचरण करना पड़ेगा, विष्णु के सम्मुख होने की आवश्यकता है। और विष्णु का रूप क्या है? सामने विष्णु हो तब तो सम्मुख हो। तो सामने आप अपने सामने आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी। हर कार्य के पहले आप ईमानदार बनने की आवश्यकता है। अगर आप ईमानदार बनकर आपके अंदर ईमानदारी घटित होने लगे, इस शरीर में, हमारे शरीर में, आपके सबके शरीर में ईमानदारी अगर घटित होने लगे, सत्य भाव घटित होने लगे, आचरण में सत्य घटित होने लगे, तो हम जो है विष्णु के सम्मुख हो रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। समझ रहे हैं? तो सर्वावस्थांगतः अपि वा, तो सर्वावस्था से आप मुक्त हो सकते हैं। एक बात खूब समझने की है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्य आचरण में रहता ही है। ये बात अलग है कि हम कोई 15% सत्य आचरण करता है, कोई 20% करता है, कोई 30% करता है। महापुरुष लोग 50-50% सत्याचरण करते हैं, और बड़े महापुरुष हुए 60%, 70% सत्याचरण करते हैं। राजा हरिश्चंद्र अगर हो गए तो 100% सत्याचरण करते हैं। हाँ, तो जितने ही आप विष्णु के सम्मुख होंगे, अर्थात सत्य का आचरण कर देंगे, उतने ही आप विष्णु के सम्मुख होंगे। और सम्मुख होंगे तो क्या होगा? सर्वावस्था से मुक्त होंगे। सर्वावस्था से जब मुक्त होंगे, ईमानदारी घटित होगी भीतर, तो आप क्या होगा? आभ्यंतर पवित्री हो जाएगी। तो बाह्य पवित्री हो गई किससे? स्नान करने से। और आभ्यंतर पवित्री किससे हो गई? सत्य आचरण करने से। तो सत्य आचरण करने से आभ्यंतर पवित्री, और बाह्य पवित्री हो गई स्नान करने से। ये दोनों जब पवित्री हो गई तो व्यक्ति क्या हुआ? संस्कार संपन्न, संस्कार हो करने के लिए, संस्कार में आगे बढ़ने के लिए वह जो है अधिकारी हो गया। इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। और जो ब्राह्मण सम्मेलन हमारा हो रहा है, इसमें हमको अपने ब्राह्मणों को भी कुछ निवेदन करना है, और समाज को भी निवेदन करना है। समाज जो है ब्राह्मणों के महत्व को समझे। ब्राह्मण और गौ के महत्व को जो समाज नहीं समझता, वह समाज अपंग होता है, वह समाज जो है लकवाग्रस्त होता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो जो ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो आभ्यंतर और बाह्य शुचि संपन्न ब्राह्मण अगर होता है, और उसके बाद वो कर्मकांड करता है, उसके बाद वो संस्कार संपन्न होता है, वो ब्राह्मण अगर है, तो ऐसे ब्राह्मण के रहने मात्र से वो समाज, जो जिस समाज में ब्राह्मण रहता है, उसके आसपास का एक औरा जो है पवित्र होता है। और खबरें 7 बजे तक में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे अगले पेशकश प्रमुख समाचार ले कुछ ही देर में आप लोगों की समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।